आज हम पढ़ेंगे गोविंद पारिक से सर्जरी। स्टार्ट करते हैं। सम कॉमन साइट्स: रोमेटॉइड आर्थराइटिस, स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड। इसे आप रैश से याद कर सकते हैं, RASH, रैश, रोमेटॉइड आर्थराइटिस इन स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड। सेकेंड, गाउट इन मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट्स ऑफ टोए, pseudogout in knee, Paget's disease, pelvis, dislocation in C5 to C7 vertebra, fracture and dislocation in dorso-lumbar region, disc prolapse L4, L5 and S1। इसे आप लोअर लंबर से भी याद रख सकते हैं। TB स्पाइन T9, T10, T11, T12। इसको आप लोअर थोरेसिक से भी याद सकते हैं। डिस्क प्रोलैप्स लोअर लंबर, TB स्पाइन लोअर थोरेसिक, स्पाइना बाइफिडा लंबोसेक्रल रीजन, गाउटी टॉफाइड कार्टिलेज ऑफ ईयर, ओलेकन बर्सा। एक गाउट की कॉम्प्लिकेशन होती है, गाउटी टॉफाइड गाउट की कॉम्प्लिकेशन होती है। अब मेन फ्रैक्चर्स की बात करते हैं। पॉट्स फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ऑफ फिबुला कॉजिंग डिसलोकेशन अराउंड एंकल। आई रिपीट, पॉट्स फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ऑफ फिबुला कॉजिंग डिसलोकेशन अराउंड एंकल। लेफ्ट पॉट फ्रैक्चर, फेशियो मैक्सिलरी फ्रैक्चर। बम्पर फ्रैक्चर, fracture of lateral condyle of tibia, crest fracture, calcaneum and vertebra, Colles fracture, fracture of radius within 2.5 cm of wrist। Colles fracture को spoon shaped fracture भी कहा जाता है। Smith fracture, reversed Colles fracture या फिर reverse spoon shaped fracture। Monteggia fracture or dislocation, fracture of upper 1/3 of the ulna with dislocation of superior radio-ulnar joint। Monteggia fracture or dislocation, fracture of upper 1/3 of ulna with dislocation of superior radio-ulnar joint। Bennett's fracture, oblique vertical first metacarpal with dorsal dislocation। Bennett's fracture, oblique vertical first metacarpal with dorsal dislocation। Congenital dislocation of hip is called von Rosen sign। अब मेन ऑपरेशंस की बात करते हैं। बिलरोथ फर्स्ट, गैस्ट्रिक रिसेक्शन प्लस गैस्ट्रोड्यूडेनल एनास्टोमोसिस। बिलरोथ सेकंड और पॉलीगैस्ट्रेक्टोमी, गैस्ट्रिक रिसेक्शन विद गैस्ट्रोजुजिनोटोमी। बिलरोथ फर्स्ट होता है गैस्ट्रोड्यूडेनल एनास्टोमोसिस, सेकंड होता है गैस्ट्रोजुजिनोटोमी। कैटल्स ऑपरेशन फॉर इंसिजनल हर्निया, hernial sac is not open, further to operation for prolapsed uterus। Manchester operation for prolapsed uterus, further to Manchester for prolapsed uterus, excision of cervix। Hartmann operation for anorectal carcinoma in an old man। Halsted operation, mastectomy for carcinoma breast। Holton Duplin's operation for inverted uterus through abdomen। Goodell's ligature for partial prolapse of rectum। Keel operation for incisional hernia, hernial sac is open। Lord operation for big size hydrocele। Lord's procedure for maximal anal dilation। Mayo operation for paraumbilical hernia, transfer elliptic incision around the umbilicus। McEvedy operation for femoral hernia, best in strangulatory hernia। Nissen fundoplication, hiatus hernia। Ramstad operation for congenital pyloric stenosis। Tracheorrhaphy, suturing of uterine cervix। Trendelenburg operation for varicose vein and for pulmonary embolectomy। Mass closure for incisional hernia। Jabole method for medium size hydrocele। Wortham operation for abdominal hysterectomy। Rovsing operation for polycystic kidney। Palomo operation for varicocele। Lothesen operation femoral hernia through inguinal canal। Lockwood operation femoral hernia below inguinal canal। कुछ मिलते जुलते ऑपरेशंस को मैं रिपीट करूँगा या एक दूसरे से कंपेयर करके आपको याद हो जाए। इंसिजनल हर्निया में 3 ऑपरेशन मेन है। एक मैस क्लोजर, कील ऑपरेशन जिसमें सैक ओपन किया जाता है, कैटल सैक को ओपन नहीं किया जाता। आई रिपीट, इंसिजनल हर्निया में 3 ऑपरेशन मेन होते हैं। मैस क्लोजर, कील ऑपरेशन सैक ओपन होता है, कैटल ऑपरेशन सैक नॉट ओपन। फिर हाइटस हर्निया में निजन फंडोप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है।
हाइटस हर्निया में नीजन फंडोप्लिकेशन। फिर फेमोरल हर्निया में 3 ऑपरेशन मेन है। मैकएवडी प्रेफर किया जाता है स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया में, लोथिसन थ्रू इंग्वाइनल कैनाल, लॉकवुड बिलो इंग्वाइनल कैनाल। आई रिपीट, फेमोरल हर्निया में 3 ऑपरेशन हैं। मैकएवडी स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया के लिए, लोथिसन थ्रू इंग्वाइनल कैनाल, लॉकवुड बिलो इंग्वाइनल कैनाल। मायो ऑपरेशन होता है पैरा एम्ब्लाइकल हर्निया के लिए, लॉर्ड होता है बिग साइज हाइड्रोसील के लिए, जेबोले होता है मीडियम साइज हाइड्रोसील के लिए। अब आगे चलते हैं। प्रेगनेंसी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद इन 3 years आफ्टर ऑपरेशन ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा। एक्चुअली हार्मोन्स का ब्रेस्ट कार्सिनोमा पे इफेक्ट होता है और प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ता है, जिसका से कार्सिनोमा का बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो ब्रेस्ट कार्सिनोमा का रिकरेंस के चांसेस होते हैं, इसलिए 3 साल तक अवॉइड किया जाती है प्रेगनेंसी आफ्टर ब्रेस्ट कार्सिनोमा। आफ्टर एब्डोमिनल ऑपरेशन इंटेस्टाइनल मोटिलिटी रिटर्न्स विद इन 16 hours। Appendectomy should be done after 3 months of acute attack. Cleft palate should be operated at age of 3 months. Most preferably 10 weeks. Rule of 10 होता है for cleft lip, जिसमें 10 weeks, weight above 10 kg and hemoglobin above 10, इनमें cleft lip का सर्जरी की जाती है। Cleft palate should be operated at 9 to 14 months, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 1.5 to 2 years नहीं, 9 to 14 months of life। ऑर्किप्लेक्सी शुड बी डन एट 2 years of age। इनिशियल लाइफ में ऑर्किप्लेक्सी अवॉइड की जाती है क्योंकि कई केसेस में अपने आप ही डिसेंड कर जाते, टेस्टिस डिसेंड कर जाते हैं। अब मेन ट्यूमर्स की बात करते हैं। पॉट पफी ट्यूमर इन क्रेनियल बोन्स, जायंट सेल ट्यूमर जिसको एस्टियोक्लास्टोमा भी बोलते हैं, लोकली मैलिग्नेंट ट्यूमर, एबनॉर्मल हाइपरप्लेजिया ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, विल्ब्स ट्यूमर इन किडनी, नेफ्रोब्लास्टोमा और एम्ब्रियोमा, चेरी ट्यूमर इन किडनी। चेरी ट्यूमर इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है पहले भी। प्रेगनेंसी ट्यूमर इन गम्स, प्रेगनेंसी के दौरान गम्स में ब्लीडिंग होती है, उसको प्रेगनेंसी ट्यूमर्स बोलते हैं। क्रूकेनबर्ग ट्यूमर, सेकेंडरीज ऑफ ओवरी, मेडुला ऑफ ओवरी इन्वॉल्व फर्स्ट। रास्पबेरी ट्यूमर, अम्बिलिकल एडिनोमा और एंटेरोटोमा। फैंटम ट्यूमर इन लंग्स, ब्राउन ट्यूमर इन हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। ये हो गया सर्जरी फ्रॉम गोविंद पाड़े। थैंक यू।